Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Index of 8 core industries witnesses growth of 5.04% in November this year. Domestic stock indices fall around 0.5%. Sensex closes below the 60,900 level. Nifty settles below the 18,100 mark. And the rupee appreciates to 82 rupees and 74 paise against the US dollar. आर्थिक सुर्खियों में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर नवंबर माह में 5.04% की बढ़त दर्ज हुई। घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.5% की गिरावट, सेंसेक्स 60,900 और निफ्टी 18,100 के स्तर से नीचे रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़त से 82 रुपये 74 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। In our top story, the index of 8 core industries have posted a growth of 5.04% in November this year as against the 0.1% in the previous month. According to the Commerce and Industry Ministry data released today, in November, cement output grew 28.6% and coal logged a gain of 12.3%. Electricity output rose 12.1%. Steel and fertilizers also witnessed growth, while refinery products, natural gas and crude oil output logged negative growth. और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के जो आज के नंबर्स हैं, डेटा जो आया है, वो कितने उत्साहजनक मानते हैं? अगर पिछले महीनों के मुकाबले हम उसका की बात करें तो बहुत जबरदस्त उछाल है और लेकिन एक मध्यम दौर में 3 से 6 महीने की अवधि में इस आंकड़ों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अमित, मुझे लगता है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि जो हम नैरेटिव सुन रहे थे इंडस्ट्री से और दूसरे यूजर इंडस्ट्री से, वो ये बता रहे थे कि इकोनॉमिक नंबर्स जो है वे शायद अच्छे ना हो, बहुत ज्यादा ऐसी आशंका थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन आ सकता है। तो मुझे लगता है ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफी हद तक जो कोर सेक्टर का ग्रोथ होती है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी नंबर्स आते हैं, उस पर भी असर डालता है। तो जो आंकड़े हैं 5% से ज्यादा, काफी इंप्रेसिव है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे नंबर्स आएंगे ये, और ये आंकड़े अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि देयर कुड बी अ स्लो डाउन गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन शायद उतना ज्यादा स्लो डाउन ना हो जितना हमें आशंका थी आने वाले महीनों के लिए। Puneet, what's the impact likely to be on the gross domestic product just for the third quarter, if not for the whole financial year? What does this mean? Are we likely to meet those targets, and specific to the quarter? So, Arjun, I really think that these numbers kind of encourage me to think that we will do that 6.4% GDP growth that we are looking at for this quarter. And I think going forward, although we have paired that estimate for next year, but these numbers give me hope that we will kind of be closer to 6% growth even for next year. Most of the world is expecting recession. If you look at the developed world, many of the countries are expecting recession and severe economic slowdown. China is expecting 2 to 3% economic growth next year. If we do 6% next year, it will be great. When I look at November data, I'm quite hopeful that we'll do closer to 6% next year. We're seeing a growth in the output for the power sector. It seems coal has gone up by 12.3%, electricity output 12.1%, but there's been negative growth, in fact, for refinery products, natural gas and crude oil output. Why is that the case? So, in fact, if you look at the numbers, they're pretty impressive, actually. Cement is up 28%. Power, steel, most of these sectors impact manufacturing, the core consumption in the economy.
of course, for many, in fact, quarters and many years, in fact, we have been losing production in refinery in crude oil. Refinery, of course, is affected by the crude oil side to some extent. So I think if you look at the other sectors, at least the 5 out of the 8 have done very well. In fact, again, I would say much better than we had expected. पुनीत, इन आंकड़ों से चूंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि अगर ढांचागत क्षेत्र में सुधार है तो पूरी अर्थव्यवस्था को बेहतर गति मिलने में बहुत मजबूती मिलती है। अगर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और अर्जुन ने भी बताया कि सीमेंट में तकरीबन 28 से 29% की बढ़त है और यानी कोयला क्षेत्र में भी तकरीबन 12% की बढ़त है, बिजली उत्पादन में भी 12% से अधिक की बढ़त है, स्टील और फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी बढ़त दर्ज हुई है। अगर इन सबको देखें, हाँ ठीक है, ये माना जाएगा कि क्योंकि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में थोड़ी सी गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन अगर इन क्षेत्र को माने तो ये कितना सीधा सीधा नजर आता है कि हमारा ढांचागत क्षेत्र, या जिसको हम ये कहते हैं कि अगर सरकार यहाँ पे ध्यान दे देती है तो पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिल जाती है। नहीं, बिल्कुल आपने अमित बिल्कुल सही कहा। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, देखिए सच बात तो यह है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को ड्राइव करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत ज्यादा पैमाने पर करनी पड़ती है, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ज्यादातर हमने देखा है कि सरकार को ही वो ड्राइव करना पड़ता है एजेंडा। हालांकि हम ये देखते थे कि सरकार जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर होता था उसमें कम इन्वेस्टमेंट करती थी, केपेक्स करती थी, और सेकंड हाफ में वो ज्यादातर हम देखते थे इन्वेस्टमेंट आती थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि थ्रू आउट द ईयर हमने देखा है कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड काफी अच्छा रहा है। तो डेफिनेटली सच आपको मैं सच कहता हूं कि ये आंकड़े हमारी उम्मीद से बहुत बेहतर है। हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था और हमें लग रहा था कि थोड़ा इसमें कमी आएगी। हालांकि देखिए ये आंकड़े ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, यानी पिछले साल के नवंबर से कंपैरिजन कर रहे हैं जी। उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि ये काफी अच्छे आंकड़े हैं और वो जो कोर सेक्टर जिसे आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको ये सपोर्ट करते हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों पे हम जिस तरह से भरोसा करें या जैसे आपकी उत्साह जगा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जो सेंसेक्स या शेयर बाजार जो सोमवार से कारोबारी सत्र आएगा उसमें इसका सीधा सीधा कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा? अमित, मैं आपको देखिए शेयर बाजार को जो असर डालती है वो कई सारी चीजें डालती है। तो आप डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक्स है वो भी अफेक्ट करती है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी अफेक्ट करता है, ग्लोबल मार्केट्स भी अफेक्ट करती है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि अभी बड़ा मिला जुला एक माहौल है स्टॉक मार्केट्स में। हम डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसे आपने बताया कोर सेक्टर ग्रोथ ये बड़े उत्साहजनक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट्स है वहां पर काफी वीकनेस भी है। एफआईआई के दोबारा से सेलिंग शुरू हो गई है, लेकिन उसका नेगेटिव असर है। तो काफी फैक्टर्स हैं जो मिक्स्ड हैं अभी और वो मार्केट को असर डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा बढ़त हम शायद बाजारों में नहीं देखेंगे, थोड़े दिन कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो इनका असर पॉजिटिव सेंटिमेंट तो रहेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं लगता इन आंकड़ों का। Puneet, the index of 8 core industries is telling us the growth in terms of demand for inputs. If you look at steel and cement, that is for the construction industry, you have fertilizer for the agriculture industry, you have coal and electricity output, refinery products, natural gas and crude oil output for the energy sector. What is the likely impact on inflation, especially for commodities? So Arjun, these are two things which they're definitely connected, but not entirely, because prices of most commodities are impacted from international demand and supply situation. So, and we know that commodity prices have been trending in many geographies because consumption is down. Particularly China, in fact, has been down lately. What happens really in core sector is that if you look at the sales of cement, all these are inputs for production next year. See, usually raw materials are sold 1 quarter in advance and then we see production in the following quarter. So when I look at November data, what encourages me most is that this means that industry is expecting a growth even in new year and the next quarter. We were expecting a slowdown in that in the first 2 quarters of next year. So I'm to some extent I'm hopeful that slowdown will not happen.
Having said that, I think commodity prices will continue to track the international trends and rather than domestic demand right now. नजर डालते हैं घरेलू शेयर बाजारों पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में नुकसान रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज आधा प्रतिशत की गिरावट से 293 अंक गिरकर 60,841 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आधा प्रतिशत के नुकसान से 86 अंक लुढ़ककर 18,105 के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.8% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। Sensex and Nifty today logged losses of around 0.5%. Index of the top 30 companies at the Bombay Stock Exchange. The Sensex ended below 60,900 level. Nifty, the index of top 50 companies at the National Stock Exchange, closed below the 18,100 mark. Both the stock indices fell amid mixed cues from the global share markets. Sensex fell by 293 points to settle at 60,841. Nifty also slipped by 86 points to finish at 18,105. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose 0.37%, while the small-cap index climbed 0.76%. In the Sensex pack, 11 companies posted gains, while 19 logged losses. Bajaj Financial Services was the top gainer, as it added 2.2%, followed by Titan, which gained 1.8%. Bajaj Finance rose 1%. On the other hand, ICICI declined 1.7%, Bharti Airtel fell 1.6%, and HDFC slipped 1.4%. In the sectoral indices at the BSE, 8 sectors logged gains, while 12 fell. Consumer durable sector climbed 0.9% and realty index rose 0.8%. On the other side, FMCG and Bankex sectors indices fell 0.6% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,195 companies gained, while 1,303 companies fell. Shares of 134 companies remained unchanged. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की मजबूती से 82 रुपये 74 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 0.1% की गिरावट से 103.7 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, हमने पहली खबर बहुत बेहतर थी जो कि कोर सेक्टर से थी। अब अगर हम शेयर बाजार की बात करते हैं, जिस तरह से आपने अभी बताया कि शेयर बाजार पर घरेलू कारकों के साथ साथ वैश्विक जो कारण हैं उनका भी पूरा असर रहता है। वैश्विक कारणों से आज तो बाजार कमजोर हो रहा है और अभी चूंकि कहीं न कहीं से वैश्विक कारण इतने मजबूत नजर नहीं आते, ऐसी आशंकाएं हैं। अगर हम सोने और चांदी की कीमतों को भी इसके साथ जोड़ दें तो कहीं न कहीं ये जरूर नजर आता है कि वैश्विक कारण शेयर बाजार में कहीं न कहीं एक दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। आप कितना सहमत हैं और क्या देखते हैं कि बजट से पहले, अगर 1 फरवरी से पहले पूरा जनवरी महीना है, वो शेयर बाजार के लिए कितना उत्साहजनक या कितना दबाव भरा या चुनौतियों भरा नजर आता है? अमित, आपसे मैं सहमत हूं कि अभी जो हालांकि डोमेस्टिक फैक्टर्स कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है फॉर स्टॉक मार्केट वो काफी चैलेंजिंग है, काफी डिफिकल्ट है। तो वो एक दबाव बना हुआ है और एफआईआई के द्वारा भी सेलिंग चल रही है। वो बीच में बाइंग थी लेकिन अब दोबारा से वो सेलिंग कर रहे हैं आजकल। और मुझे लगता है कि आने वाला महीना जो है वो काफी चढ़ाव का रहेगा, क्योंकि इस दौरान जो कंपनी जगत के नतीजे हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर क्वार्टर के डेटा उसमें भी हमें लगता है कि मिक्स्ड बैग होगा। कुछ सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, वहां पर हम अच्छी नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ क्षेत्रों के नतीजे उतने अच्छे ना हो। तो मुझे लगता है कि बाजार में पूरा जनवरी जो है वो एक उतार चढ़ाव का माहौल या वोलेटाइल माहौल रह सकता है। और जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, देखिए वहां पर हालांकि इंटरेस्ट रेट की जो मुहिम है यूएसए में वो कम होगी और डेफिनेटली आने वाले टाइम में अमेरिका में बहुत ज्यादा अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका नहीं है, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी कमी आ सकती है। तो इस वक्त ये सब मिक्स्ड, मैं जैसे दोबारा से कहूंगा कि मिक्स्ड फैक्टर्स हैं और इसके चलते बाजार जो है वो काफी वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स शुड बी रेडी फॉर दैट इन द शॉर्ट टर्म। देखिए, ये एक्सपेक्टेशन मेरी है कि अगले 3 से 6 महीने जो है वो बाजारों में माहौल थोड़ा दबाव में रह सकता है। The DIIs managed to offset the selling pressure by FIIs to the tune of 2,266 crore rupees as net buyers. Why was it that the focus was on small cap and the mid cap sector companies today? So Arjun, we all know that today was the last trading day of this calendar year,
And there is a practice among mutual funds and funds, among hedge funds, etc., to shore up their NAVs towards the end of the year, because that is the quarter ending, and then those numbers come out, which encourage investors. So what we typically call quarter end shopping by mutual funds, they do try to build on their profit making positions. It helps to shore up their NAVs. At the same time, it helps them to consolidate the profits. So I think a lot of that happened today. Also, you would notice that today was the first day after Nifty rebalancing. So again, we saw some outflows, some inflows into stocks. Broadly speaking, I think a lot will depend on the mutual fund data that we get next. How much money retail investors are willing to put into mutual funds, that is what will define how much pressure we can take from FIIs. I think the SIPs will continue to be strong, but the retail flows into other mutual fund schemes has slowed down a lot. So that data will be pretty interesting. It will come out next week. जी, पूरी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेना है एक कमर्शियल ब्रेक। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे शेयर बाजार के आने वाले महीनों में या आने वाले सप्ताहों में किस तरह से शेयर बाजार की दशा और दिशा रह सकती है। पुनीत, आपने जो जिक्र किया कि शेयर बाजार में दबाव नजर आ रहा है, साफ साफ कि दबाव में रहने की अधिक संभावना है। इन सारे दबावों के बीच में अगर सेंसेक्स टैक्स में जहां आज गिरावट रही वहीं निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में तकरीबन 0.5% से लेकर 0.8% तक की बढ़त भी दर्ज हुई है। इसको किस तरह से आंकते हैं, ये मेरी पहली जिज्ञासा है। और दूसरा, अगर हम अभी दबावों में गुजर रहे हैं, शेयर बाजार के नजरिए से देखें, तो इस दबावों में जो अवसर हैं वो किन शेयर या किस सेक्टर में नजर आते हैं? तो अभी हम नजर डालते हैं कि पूरा साल ये शेयर बाजार के लिए कैसा रहा भारत के लिए। और देखिए, अगर 1 जनवरी से मैं 30 दिसंबर का कंपैरिजन करता हूं पूरे साल का, तो करीब 4.5% निफ्टी और सेंसेक्स में हमने बढ़त देखी इस साल, जो आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे बड़े बाजार से कंपेयर करें, अमेरिका से या दूसरे यूरोप से, तो वहां पर करीब 20% की गिरावट आई है इस दौरान शेयर बाजारों में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा है। और दिस वाज डिस्पाइट सेलिंग बाय एफआईआई। तो जो मेन कारण रहा है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा कॉन्फिडेंस, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और उनका जो पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड्स में और लार्ज कैप्स में था ही, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो डोमेस्टिक ज्यादा ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उसके अंदर काफी निवेश किया। आज भी हमने देखा कि जो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स है, वहां पर म्यूचुअल फंड्स ने भी और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बाइंग करी, और वहां पर बढ़त रही, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट थी। तो भारत की जो स्टोरी है वो काफी इंप्रेसिव है व्हेन कंपेयर्ड टू द ग्लोबल मार्केट। उसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि 4 या 5% की बढ़त में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस दौरान कई क्षेत्र, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत अच्छी उसमें बढ़त रही। इस पूरे सप्ताह में अगर आप देखें तो बेस्ट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक की थी, करीब 11% पीएसयू बैंक में बढ़त थी। तो काफी, मतलब ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको उतना इंप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इंटरनल्स में जाएंगे, सेक्टोरल देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे काफी सक्सेस और स्टोरीज भी थी, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी रहे। तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी वही कारण है कि रिटेल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा निवेश है, कॉन्फिडेंस है, और एफआईआई जो लार्ज कैप्स जो ज्यादा होल्ड करते हैं, वहां हमने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस या बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखी अभी तक। पुनीत, आपने जैसा अभी जिक्र किया कि दबाव के बावजूद बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी उम्मीदों की किरणें बाकी हैं, तो एक आम जिज्ञासा ये होगी कि अगर इस दबाव में या अगर शेयर बाजार में कहीं थोड़ी बहुत भी गिरावट चलती है, तो हमें कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें फौरी ध्यान देना होगा? एक तो आपने जिक्र कर ही दिया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि वो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। इसके अलावा
तो इसके अलावा हम जो देख रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वहां पर भी अभी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक आ रही है और सेल्स भी अच्छी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप आने के बाद वहां पर काफी कंसोलिडेशन हुआ है, तो वो हमें एक अच्छी उम्मीद लग रही है। दूसरा, अगर आप देखें तो आईटी क्षेत्र में जो सर्विसेज कंपनीज हैं भारत की, वहां पर काफी गिरावट आई है। आपको हैरानी होगी, बड़ी कंपनीज में 30% की गिरावट आई है, तो वहां अच्छे डिविडेंड यील्ड्स भी हैं, वहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल इन्वेस्टर्स को इस वक्त जो हम कहते हैं सेफ्टी या वैल्यू स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कुछ कमोडिटी स्टॉक्स भी हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, तो जहां पर बहुत गिरावट आ चुकी है और अच्छी डिविडेंड यील्ड है। तो बेसिकली मैं कहूंगा कि हाई डिविडेंड यील्ड और जहां पर अच्छी बुक वैल्यू है वहां पर निवेश करें, डिफेंसिव सेक्टर में निवेश करें। अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ सेक्टर की तरफ निवेशक ना जाए। आफ्टर सम टाइम जब मार्केट स्टेबलाइज होंगे तब वो निवेश कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में कैलेंडर वर्ष के अंतिम कारोबारी सत्र में मजबूती का दौर रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक 0.1% की बढ़त से बंद हुआ। जापान का निक्केई पूर्व स्तर पर बरकरार रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद रहा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंची मुद्रास्फीति और कठोर मौद्रिक नीति के कारण यूरोपीय बाजार वर्ष 2018 के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वैश्विक सूचकांकों में लगभग 20% तक की गिरावट होने की आशंका है। यूरोपीय शेयर बाजारों के आज शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.4% से 0.8% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Puneet, your take on China's reversal of its zero tolerance COVID policy. What does this mean for the global economy now that the Chinese government realizes they cannot enforce any more strict norms on its economy and its impact on the world, because now they have lifted all restrictions? Absolutely. So the reversal in China was swift and very stunning, because China is known to be quite adamant about its policies, and but they quickly realized that what they were doing was not right, and the economy was suffering, people were suffering. So they turned around, but I think we still see some ripple effects of that. Of course, economic activity will go up, so we'll probably see commodity consumption will go up a little bit. But what we have heard is that in China, the spread of the virus is so severe that it might constrain their consumption as it is. So I think China continues to be a puzzle for us right now. If you really look at the broad picture, then we expect economic activity to pick up globally. Supplies should pick up. The supply chains should be better. But if China has a very large number of infections, then it could be a problem also for the world. And first of all, of course, it could spread to the other countries. Secondly, I think it might naturally constrain their consumption. So China, we need to watch closely. I don't have numbers right now with me, but I think it continues to be a matter of concern for us. And what about the Japanese central bank? How do you see that as an important cog in the Asian economies? So, in fact, Japan was quite a surprise package in the world, because all central banks were tightening money policies, they were raising interest rates. Japan continued to say that they will keep interest rates low and they will keep monetary policy very easy. They made a turnaround. No, they said that okay, we'll raise that cap on bond yields, reduce money supply. I think it is good, because it will stabilize Japan's economy. And because Japan was looking at a threat of a high inflation. We don't want that in Japan, because it's a very big manufacturing hub for the world. So I think that turnabout in Japan monetary policy is welcome, and probably they will stabilize around these levels. So they're not right. Tight policy, but they'll stabilize. Well, the yen has certainly recovered against the US dollar. Let's have a look at the US market now. Wall Street's main indices closed higher yesterday, led by growth stocks, as US unemployment data signaled the Fed Reserve's interest rate hikes might be starting to dent the labor market strength in its bid to fight inflation. The Nasdaq Composite Index surged 2.6%, S&P 500 gained 1.8%, and the Dow Jones Industrial Average Index added 1.1%. Puneet, even though the Fed has repeatedly maintained that they are seeking to fight inflation by raising interest rates, so why is it that they don't bring about some controls over how their equity markets function, especially the role of hedge funds, if they don't want capital to
be a flight risk and invest in the macroeconomy. Thereby, it will certainly increase employment and industrial productivity. So this is the debate in US where a lot of people believe that there should be more regulatory controls in the US capital markets. I think it's a matter of debate, but the US Fed tries to control capital flows through interest rates and monetary policy tightening. They've been doing it, and we see that that is happening. No flows in America being cut down, borrowings by hedge funds have come down a lot, and you've seen the impact on stocks like Tesla, which have crashed 70-80% in last 1 year because there was a bubble, and that bubble has burst now. So clearly it's speculative capital that they have controlled through this monetary policy, but not completely, and it seems to have an effect on the average person because they are living off Social Security in many cases. Arjun, in America, see, the American capital markets or stock markets are very intricately linked to Americans' way of life. And unlike India, where it touches fewer people, in America it touches almost everybody through their 401ks, through the direct investments. So I don't think that they want the market to crash. In fact, for many years, almost 20 years, the US Fed has been defending the US market valuations through their monetary policy because they don't want the market to crash because it creates a negative wealth loop. And I think American regulators are very conscious of the fact that they do not want capital markets to be in a crisis. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today rose and was on track for a second straight annual gain in a volatile year marked by tight supplies because of the Ukraine war and weakening demand from the world's top crude importer, China. In intraday trade, Brent crude was trading at $83.60 per barrel, while WTI crude was at $78.40 per barrel. It seems that oil prices are firming up once again. Do you see this as a trend that's emerging now that there's possibility of the Ukraine war being contained because of the compromise from both sides? So, Arjun, I think oil prices, of course, they are very geopolitical kind of a commodity, but I think oil prices will stabilize in the current range, plus minus a few dollars, because demand supply is roughly balanced right now, and China is coming back on stream. So I think consumption will rise a little bit, but overall I think manufacturers but I think prices will stabilize. You think winter has a role to play in this? Briefly. No, beyond a point I don't think we have a play. We are more, of course we are a consumer, but not significantly. नजर डालते हैं सराफा बाजार में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 35 रुपए के नुकसान से 54,935 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 315 रुपए के गिरावट से 69,455 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट से $1,824.10 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी बढ़त से $24.10 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, समय कम है लेकिन फिर भी सोने में अभी कितनी तेजी है? हमने बात करी थी जब चांदी तकरीबन 58,000 थी, आज 69,000 की हम बात करते हैं। तो जिस तरह से अर्जुन और हमने एक दिन के अनुमान लगाया था कि चांदी तकरीबन 72,000 के स्तर को पार कर सकती है, क्या हमारी उम्मीदें जागृत हो रही हैं? देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट की उम्मीदें क्या है। मार्केट काफी ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट कर रही है गोल्ड और सिल्वर में, और पर्टिकुलरली सिल्वर में ज्यादा मार्केट एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जो रेशो है गोल्ड सिल्वर की वो कम आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि अभी प्रेशियस मेटल्स में और तेजी हो सकती है, और चांदी के लिए फिलहाल जो मार्केट है वो ज्यादा उम्मीद रख रही है। So the domestic market, gold and silver actually is contained, but in the international market it has really gone up. Absolutely. Even in domestic market also, we've seen silver prices, like Amit mentioned, they've gone up a lot. But there is a bullish position still built on this. I don't personally analyze them beyond a point, but I'm telling you what the market is in terms of जी, पुनीत, कार्यक्रम आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। The index of 8 core industries witnessed growth of 5.04% in November this year. Domestic stock indices fall around 0.5%. Sensex closes below the 60,900 level. Nifty settles below the 18,100 mark. And rupee appreciates to 82 rupees and 74 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.